taking too long. Okay, so we'll start now. Okay, so in our previous lecture, we derived the equation of strain. We derived this equation that strain is equal to नेगेटिव y by r. अब यहाँ पे y क्या है? अब मेरा ये जो बीम है, ये जो मेरा बीम है उसमें कोई न्यूट्रल लेयर या फिर न्यूट्रल एक्सिस या फिर न्यूट्रल सरफेस है. वहां से जो भी लेयर मुझे एनालाइज करना है, सपोज यहाँ पे कितना स्ट्रेन है वो मुझे मालूम करना है. सो दिस डिस्टेंस इज y, दैट इज डिस्टेंस from neutral axis. Okay, so y is the distance from neutral axis. Okay, and capital R, what is capital R? Our beam is actually bending. Okay, so the R is the radius of curvature of the beam. जो हमारा बीम है वो पूरा जो बेंड हो रहा है, सॉरी, what is happening? ये जो मेरा बीम है, तो हमारा बीम जिस कर्वेचर में बेंड हो रहा है उस कर्वेचर का रेडियस, वो कहाँ से मेजर करते हैं? न्यूट्रल एक्सिस से या फिर न्यूट्रल सरफेस से. तो कीप दिस थिंग इन माइंड. देन वी saw something that y will be positive above neutral axis and y will be negative below neutral axis. So if you take the fibers above neutral axis, means y is positive, so above neutral axis there will be negative strain or compression, and below neutral axis there will be positive strain, or you can say tensile strain or elongation will be there. Okay, and this is the equation of maximum strain. Okay, absolute equation. Okay, this is absolute value. Here we have neglected the sign. Okay, positive, negative we have neglected. We are taking just value. Okay, so epsilon max is equal to capital C divided by capital R. Now what is C? If you see, C is the distance from neutral axis. कहाँ तक का डिस्टेंस? जहां तक मटेरियल अवेलेबल है. ओके, अभी न्यूट्रल एक्सिस से दोनों साइड पे मटेरियल अवेलेबल है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी अवेलेबल है मटेरियल. तो दोनों में से जो भी डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, सपोज ऊपर की तरफ 100 mm है डिस्टेंस और नीचे की तरफ 80 mm डिस्टेंस है. ओके, so we will take C is equal to 100 for calculating maximum strain. Okay, so epsilon max is equal to capital C by capital R. This is one important equation. Okay, this one and this one, these two are important equations. Okay, now from equation number 1 and equation number 2, okay, दोनों पे से हम एक रिलेशन बना सकते हैं. ओके, एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन मैक्स इज इक्वल टू नेगेटिव y बाय c. इट इज इक्वल टू नेगेटिव y बाय c. So using this equation, epsilon is equal to negative y by c epsilon max, we can draw the strain distribution over the depth of the beam. हमारा जो बीम है, हमारा जो बीम है, उस बीम की डेप्थ में स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मीन्स यहाँ पे स्ट्रेन कैसा है, देन नीचे अगर आप जाते हो तो स्ट्रेन का वैल्यू कैसे चेंज होता है. दैट डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन. वी नो दैट एप्सिलॉन इज इक्वल टू नेगेटिव y by c एप्सिलॉन मैक्स. तो अभी मैक्सिमम स्ट्रेन आइदर यहाँ पे हो सकता है या तो फिर नीचे हो सकता है.
and you see strain is linearly varying with the distance y. Okay, so we will draw a linear line, a straight line, linear variation is there. Okay, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगी या तो फिर न्यूट्रल सरफेस आ जाएगी. ओके, उसके ऊपर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है. ओके, क्योंकि मेरा जो मटेरियल था वो अवेलेबल था यहाँ पे. ओके, ये कंप्रेस होके अंदर जाएगा. और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे मेरा मटेरियल था यहाँ पे, वो एक्सपांड होके या तो फिर टेंसाइल स्ट्रेस की स्ट्रेन की वजह से बाहर की तरफ निकलेगा. तो ऐसे मेरा स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म होता है. ओके, सो दिस इज हाउ द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ड्रॉन. एग्जाम में काफी बार पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि ड्रॉ द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, derive the equation and draw the strain distribution over the depth of the beam. Okay, ये जो है ये बीम की डेप्थ है. यहाँ पे टॉप फाइबर है, यहाँ पे बॉटम फाइबर है. ओके, यहाँ पे एक सेगमेंट ही बताया है आपको, पर ये पूरा बीम के लिए वैलिड होगा. ओके, so this is the normal strain distribution. Okay, so now we are having the value of strain. Now, using the relation of stress and strain, we know that our second assumption is sigma. Our material obeys Hooke's law, so sigma is proportional to epsilon. So, using our second assumption, we can write it in this way. Okay, so जहाँ पे भी इस equation number 3 में जहाँ पे भी strain है, उसकी जगह पे हम stress सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो सिग्मा इज इक्वल टू नेगेटिव y by c सिग्मा मैक्सिमम. एंड सो दिस यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द डेप्थ ऑफ द बीम. ओके, बीम की डेप्थ में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो. यहाँ पे टॉप मोस्ट फाइबर है, यहाँ पे बॉटम मोस्ट फाइबर है. ओके, एंड above neutral axis there will be compressive stress and below neutral axis there will be tensile stress. Okay, and we also know that sigma is equal to E epsilon. If we remove this proportionality limit then and put the equal to sign, then we must multiply the epsilon with modulus of elasticity. Simply substitute the value of epsilon over here. Epsilon is equal to negative y by capital R. Okay, so sigma is equal to negative y by R multiplied by E. Okay, take this y on opposite side, so sigma divided by y is equal to negative E by R. Okay, I can write this equation in this way also. Okay, E by R is equal to negative sigma by y. Okay, equation number 5 is very much important. Okay, जो भी equation के numbers यहाँ पे दिए गए हैं, these equations are important equations. Examples solve करते समय हमको यही equations use करने हैं. Okay. So one more important equation from the relation of stress and strain. Okay, so E by R is equal to negative sigma by y. Now we can determine the stress in beam from the requirement that the resultant internal moment, that is M, must be equal to the moment produced by the stress distribution about the neutral axis. Now what this thing actually trying to say? ये क्या कहना चाहता है? Okay. So stress, we can find the internal stress by another way also. Okay, let's see the first figure. Okay, let's see this figure. Okay, so यहाँ पे stress distribution दिखाया है. Okay, and we know that ये जो stress distribution है वो किसकी वजह से आया है? That is generated because of this moment.
हमने बीम के ऊपर एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाई की, बीम डिफ्लेक्ट हुआ, ओके, उसी वजह से उसके अंदर स्ट्रेसेस भी जनरेट हुए हैं। ओके, सो वी हैव ड्रॉन हियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, so now if I take into consideration a small element over here, okay, मेरा जो बीम है उसका ये क्रॉस सेक्शन है, ओके, दिस वन इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, यहाँ पे लेंथ होगी उसकी। ओके, सो क्रॉस सेक्शन के अंदर मैं एक एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ, बिकॉज स्ट्रेसेस कहाँ पे जनरेट हुए हैं, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के अंदर। Okay, so I am taking a rectangular element over here for consideration. Okay, so on this element, if I draw this element over here, you can see this is the element separated from this figure, or you can say this figure. Both are identical. Okay, simple cross section change है और कुछ नहीं है। Okay, so यहाँ पे मैंने ये जो small element है वो separate किया हुआ है। Okay, so on this element if I draw the stress distribution, तो आप देख सकते हो कि जैसे आप सिंपल रॉड के ऊपर दोनों साइड से स्ट्रेस अप्लाई करते हो, वैसा ही स्ट्रेस एक स्मॉल एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हुआ है यहाँ पे। okay, and the area of this small element, you can say this area is dA। okay. So if I want to find the equation of stress, relation between stress and area, क्या रिलेशन होता है? सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ओके, यहाँ पे एलिमेंटल फोर्स ले लेंगे हम। ओके, सो सिग्मा इज इक्वल टू डीएफ डिवाइड बाय डी एरिया। तो इन अनदर वे वी कैन से दैट डीएफ elemental force is equal to sigma times dA or sigma multiplied by dA. So is this thing clear to you? यहाँ तक कोई confusion है? How we write this equation? Hello? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ओके, so now we will move ahead. ओके, हाँ, जो मेन थिंग था वो तो बेट पता नहीं रहेगा। सो दिस डीएफ फोर्स, ये जो डीएफ फोर्स है दैट इज एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट। और ये एलिमेंट जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है। इट इज एट सम डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे है? इफ यू सी दिस एलिमेंट इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो ये जो फोर्स है, एलिमेंटल फोर्स है, उसकी वजह से भी कोई मोमेंट जनरेट होगी। ओके, सो मोमेंट जनरेटेड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स is dF multiplied by dy, that is the moment generated by this force. Okay, so ऐसे काफी सारे elements हैं यहाँ पे available. Let me clear these things. Okay, हमने यहाँ पे ये एक एलिमेंट लिया, ऐसा दूसरा ही एलिमेंट यहाँ पे होगा, तीसरा एलिमेंट होगा, ये चौथा एलिमेंट होगा, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। okay, तो हर एक एलिमेंट के ऊपर कोई डिफरेंट फोर्स एक्ट हो रहा होगा, उसका डिस्टेंस डिफरेंट होगा। सो इफ आई टेक द समेशन ऑफ मोमेंट बिकॉज ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट के ऊपर, इस सेकंड के ऊपर, थर्ड के ऊपर, फोर्थ के ऊपर, इन सब के ऊपर जो भी फोर्स लग रहे हैं, उस फोर्सेस की वजह से जो भी मोमेंट्स जनरेट हो रही है, इफ आई टेक द समेशन ऑफ ऑल दिस स्मॉल मोमेंट्स, तो टोटल मोमेंट कितनी होगी? टोटल मोमेंट विल बी एग्जैक्टली सेम एज इक्वल टू दी अप्लाइड एक्सटर्नल मोमेंट। जो हमने बाहर से अप्लाई की हुई है उतनी ही मोमेंट इस स्मॉल फोर्सेस की वजह से जनरेट होगी।
ये सिंपल इक्विलिब्रियम का केस है. ओके, so that is what written over here. Okay, so now you read this sentence. So now you get idea. Okay, stresses in the beam from the requirement that the resultant internal moment m. Okay, resultant internal moment m must be equal to the moment produced by the stress distribution about the neutral axis. Means जो capital M है, that must be equal to summation of all these moment because of forces. Okay, summation of all these moment because of forces. So we will use this thing. So resultant moment about z. Okay, now you see we have written about z. In previous lecture I have already told you that here we will consider moment about z. Okay, why about z? Because if you see in this figure, okay, which one? Yes, this one. Okay, I clearly mention you must focus on the coordinate axes. Here x-axis is the longitudinal axis, y is the vertical axis, and z is this horizontal axis passing from cross section. Okay, and if you see this moment m, this moment m is acting about this z axis. Okay, so that is why we will denote this moment by mz. Okay, so it is equal to summation of mz. Okay, so here you can write dmz. Okay, so differential moment kitni thi? It was equal to df multiplied by the distance y. Okay, and if I want to find total, then simply take integration over the area. Now put the value of df. Okay, df is equal to sigma into dA. I have just shown you how this is. Okay, so sigma multiplied by dA. Now put the value of sigma from equation number 4. Okay, sigma is equal to y by c, sigma maximum. Okay, here we are ignoring this sign negative. Okay, because negative positive just indicates tensile and compressive. Okay, if you want to consider, you can consider, but here I am neglecting this because I know कि y जो है वो मेरा डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होगा. Okay, then I know that वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा. अगर y मैं न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का डिस्टेंस ले रहा हूँ तो वो पॉजिटिव होगा. सो आई नो कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है. सो यहाँ पे मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ साइन को. तो सिग्मा इज इक्वल टू y by c, सिग्मा मैक्सिमम. नाउ डू द सिंप्लीफिकेशन. ओके, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. वो मटेरियल कितना मैक्सिमम ले सकता है स्ट्रेस, दैट इज मैक्सिमम. Okay, in case of ductile material it is yield strength or yield stress. In case of brittle material it is ultimate stress. Okay, so sigma max is constant c. Okay, now I hope you remember what is c. C is the distance, maximum distance up to which material is available in our beam. Okay, ये जो बीम है हमारा थ्रू आउट द लेंथ कि उसमें मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक मटेरियल मेरा अवेलेबल है, दैट इज सी. ओके, सो दैट इज आल्सो कांस्टेंट, so it will be taken out of integration. So only variable is or whatever left is integration y square dA. Now if you recall the chapter of moment of inertia, this equation integration y square dA is the second moment of area. If you remember, if you don't remember, go and check. I already taught you y square dA is second moment of area, or you can say simply area moment of inertia. So instead of this term, okay, I can replace it with I, the moment of inertia. Okay, so m bending moment is equal to sigma max divided by c multiplied by moment of inertia, or you can say area moment of inertia,
of given section. So from if I shuffle this equation, then I get sigma maximum. Sigma maximum is equal to m c by I. Okay. So that is the maximum stress generated in a beam, okay, when you apply this much amount of moment. And from the relation of sigma and sigma maximum, again we will use the same relation. Sigma is equal to negative y by c sigma max. Okay, again here you can if you want you can neglect the sign. Okay. So negative y by c m c by I. Okay, this c get cancelled. Okay, so sigma is equal to negative m y by I. If I take this y over here, then sigma by y is equal to m upon I, or you can say negative sigma by y is equal to m upon I. That is equation number 8. Now if you see, we have seen this kind of thing just now. Okay, you see here, negative sigma by y is equal to actually E by R. Okay. So this is very important equation throughout your engineering and even after passing the engineering. Okay. You must remember this equation. कोई भी अगर गेट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी ये इक्वेशन very important. Fluxure formula it is known as. So sigma upon y is equal to m upon I is equal to E by R. Very much important equation. I am again telling, आप कहीं पे भी जाओगे इंजीनियरिंग में हो तो ये इक्वेशन आपको काफी यूजफुल रहेगा. So you must remember this equation. Sigma upon y is equal to m upon I is equal to E by R. Okay, many times in exam they ask to derive the equation of Fluxure formula. Okay, so आपको ये equation derive करना पड़ेगा. Sigma upon y is equal to m upon I is equal to E by R. Okay, here also you can, if you want, you can ignore this sign. If you know कि आपका y distance कहाँ पे है तो आप ये साइन इग्नोर कर सकते हो. आप जो भी इक्वेशन आपका मैग्नीट्यूड आता है कि उसके अंदर साइड में आप लिख दीजिए कि दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस. ओके, दैट्स इट. So this is the Fluxure formula. Okay, so now what I want you to remember is first one is Fluxure formula. Sigma upon y is equal to m upon I is equal to E by R. Second equation I want to remember is sigma is equal to m y by I. If you see, this equation can be formed if you remember this equation. आप ये दो टर्म ले लीजिए, sigma is equal to m y by R. Another equation, sigma is equal to E epsilon. ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है. एंड कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछते हैं कि प्रूव दैट स्ट्रेन इज लीनियरली वेराइंग ओवर द डेप्थ ऑफ द बीम. तो आपको ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो आपको डिराइव करना पड़ेगा. इज इक्वेशन नंबर 1. So that's it for this theory. Okay, so now we know the equation of sigma, and in this equation sigma is the stress, bending stress, okay, either tensile or compressive. Y is the distance of fiber from neutral axis. Okay, again मैं बोल रहा हूँ ये मेरा ब्रिज है या फिर बीम ले लीजिए. ओके, यहाँ पे मैंने सपोर्ट दिया हुआ है. ओके, अगर मैं इसके ऊपर लोड अप्लाई करता हूँ तो ये बीम बैंड होगा. और उसके अंदर कोई न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे अवेलेबल होगी. तो न्यूट्रल एक्सिस से कोई भी फाइबर का डिस्टेंस है. m is the moment applied, I is the moment of inertia of, or you can say area moment of inertia. अभी ये जो बीम है उसका क्रॉस सेक्शन आपको विजिबल नहीं है, बट मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि
बीम जो है वो हमारा रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन का भी हो सकता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का भी हो सकता है। इसका क्रॉस सेक्शन आई क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, टी क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, एंगल क्रॉस सेक्शन एल एल शेप क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। आप जो भी ओवरहेड क्रेन्स देखते हो कि जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे रखती है इन शेड्स, ओके, उसके अंदर आई सेक्शन का यूज होता है। रेलवे की पटरियां भी देखते हो, उसके अंदर भी आई सेक्शन का यूज होता है। काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन है। आप व्हाट कैन आई से, अपने कॉलेज के क्लास में स्टेज देखे होंगे, फैकल्टी जिस स्टेज पे खड़े होकर लेक्चर डिलीवर करते हैं, उस स्टेज को जो बनाते हैं वो इस बनाते हैं। okay. तो दीज आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो आई, अगर आपको कोई भी क्रॉस सेक्शन दिया होगा तो मोमेंट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अकॉर्डिंगली जो भी क्रॉस सेक्शन दिया है उसका इक्वेशन यूज करना होगा। तो कीप दिस थिंग इन माइंड। आई होप इज इट क्लियर टू यू अप टिल नाउ? यहाँ तक क्लियर है? इस इक्वेशन के डेरिवेशन में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो अभी बोल दो। Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. So we are having time, so I will start the next topic. Okay. That is modulus of section or section modulus. Okay, अभी नाम जो है वो काफी हैवी दे दिया है, but it is nothing but you know the equation of sigma. Sigma is equal to m y by I. If I reshuffle this equation, if I write in this way, sigma is equal to m अपन I by y. So ये जो टर्म है I by y, that is called section modulus and it is denoted by Z. It is nothing, just a mathematical equation. Okay. So section modulus is defined as Z is equal to I by y or I by c to be precise, where c is distance from neutral axis. अभी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होगी? काफी सारे स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन हो गया कि भाई न्यूट्रल एक्सिस बोलता रहे अपन, वो कहाँ पे होगी? सो न्यूट्रल एक्सिस, जनरली न्यूट्रल एक्सिस जो है वो हमारे क्रॉस सेक्शन, अगर स्ट्रेट बीम है, अगर स्ट्रेट बीम है कि बिफोर डिफॉर्मेशन, अगर बीम हमारा स्ट्रेट है तो उसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो क्रॉस सेक्शन के सेंटर में होगा। कि हमारा जो भी क्रॉस सेक्शन होगा उसके एग्जैक्ट सेंटर में होगा। अगर आप हुक ले लेते हो, जो क्रेन से हम सामान उठाते हैं उसका जो हुक होता है, सो दिस इज कर्व्ड बीम। So whatever neutral axis we are finding in straight beam is will be not same in curved beam. ये आपके सिलेबस में नहीं है, so मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। I don't want to discuss that thing. Okay, we will just concentrate on this case straight beam के लिए। so straight beam के लिए हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो क्रॉस सेक्शन के सेंटर में होगा। अगर मेरा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है बीम का तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में होगा। सेंटर में से पास होता है न्यूट्रल एक्सिस। ओके, तो इन रेक्टेंगुलर सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस इज ओवर हियर, हमारी विड्थ b है और हाइट d है। ओके, सो d/2 जितने डिस्टेंस पे न्यूट्रल एक्सिस होगा एग्जैक्टली मिडल पे। So now what will be the section modulus of rectangular section? Okay, अभी I का जो इक्वेशन है वो हमने ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर के अंदर डिराइव किया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इज, क्या होगा फाइनल इक्वेशन, क्या आएगा हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए? किसी को याद है?
मुझे बी ये, डी क्यूब बाई 12। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, बी डी क्यूब बाई 12। तो एंड यहाँ पे इस केस के अंदर मेरा मटेरियल न्यूट्रल एक्सिस से कितने डिस्टेंस तक अवेलेबल है, मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक अवेलेबल है, ये डिस्टेंस कितना होगा? बोलो। बी बाई 2। यस एग्जैक्टली, डी बाई 2। अगर मैं यहाँ से नीचे भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी डिस्टेंस डी बाई 2 ही अवेलेबल है। हमको सी के लिए, सी जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है। अगर ये वाला मैक्सिमम होगा तो ये लेंगे, अगर ये वाला मैक्सिमम होगा तो ये लेंगे। पर यहाँ पे दोनों सेम है, so we can take any of them. So C is equal to D by 2. So section modulus Z will be I by C. Here हमारा I कितना है? B D cube by 12 and C is D by 2. ओके, अभी आपको ये सेक्शन मॉड्यूलस का इक्वेशन याद रखने का जरूरत नहीं है। You don't require to remember the equation of section modulus. आपको सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन याद रखना है, और फिगर के ऊपर से आपको न्यूट्रल एक्सिस का लोकेशन मालूम होगा, तो वहाँ से सिर्फ ये जो C है या फिर Y आप बोलते हो, कि वो डिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए। सिंपली सब्सटीट्यूट ऑल दिस I एंड Y इन दिस इक्वेशन, तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। आपको ये नया इक्वेशन याद रखने का जरूर नहीं है, बिकॉज काफ़ी सारे इक्वेशंस हमारे पास है याद रखने के लिए। तो यहाँ आप कॉन्सेप्चुअल वाइज जाइए, आप सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन याद रखिए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका लोकेशन याद रखिए, और कुछ नहीं। सो दैट इज द सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। अगर दिस ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मेरा रेक्टेंगल है, ये जो हम बी डी क्यूब बाई 12 बोल रहे हैं वो अबाउट दिस एक्सिस है, बट अगर मुझे ये यहाँ पे बॉटम में से फाइंड करना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके हमने ये इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव किया है। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर अगेन। अभी हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए सेक्शन मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो आपको सेम इक्वेशन C इज इक्वल टू I बाई C, सॉरी Z इज इक्वल टू I बाई C एंड I हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन ये होता है, कैपिटल बी डी क्यूब बाई 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यूब बाई 12। तो ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, तो आई विल यूज द सेम इक्वेशन ओवर हियर। अभी C कौन सा लेना होगा? यहाँ पे तो दो डिस्टेंस अवेलेबल हो गए y के, ये वाला भी अवेलेबल है और यहाँ वाला भी अवेलेबल है। सो एज आई टोल्ड यू, आपको मैक्सिमम लेना है। सो मैक्सिमम यहाँ पे कहाँ तक जाएगा? ऊपर मेरा मटेरियल मैक्सिमम यहाँ से, इसके ऊपर कोई मटेरियल नहीं है। ओके, सो आई विल टेक d बाई 2। C विल बी टेकन d बाई 2, नॉट स्मॉल d बाई 2। ओके, सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम कहाँ तक मटेरियल अवेलेबल है, उसके ऊपर कोई मटेरियल नहीं है, कि वो वाला डिस्टेंस लेना है। सो यू विल गेट द आंसर। सिंप्लीफिकेशन देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डेटा दिया होगा, डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए और आंसर लाइए। देन सर्कुलर सेक्शन के लिए अगर हम देखते हैं, इफ यू टेक द सर्कुलर सेक्शन, देन अगेन ओके, ये इक्वेशन सर्कुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/64 d⁴, ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है, मेरा न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है, अभी यहाँ से मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक मटेरियल अवेलेबल होगा? तो यहाँ तक अवेलेबल है। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू d बाई 2 और यू कैन से r रेडियस। सिमिलरली फॉर I सेक्शन, अगर सेक्शन मॉड्यूलस फाइंड करना है तो सेक्शन मॉड्यूलस का इक्वेशन है Z इज इक्वल टू I बाई C। के मोमेंट ऑफ इनर्शिया I सेक्शन के लिए हमने ऑलरेडी फाइंड किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर में। हियर नाउ यहाँ से मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक अवेलेबल है मटेरियल? इन दिस फिगर मैक्सिमम हाइट इज दिस, कैपिटल D। सब
d/2 जितने डिस्टेंस तक अवेलेबल होगा। इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे करना है तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। Okay, then similarly for T section, okay, so I section, यहाँ पे अभी जो भी सेक्शन हमने देखे हैं, I सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, उसके अंदर न्यूट्रल एक्सिस जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला एक्सिस, वो हमको डायरेक्टली मालूम है कि एग्जैक्टली सेंटर में आता है। ओके, यहाँ पे भी सेंटर में है, यहाँ पे भी सेंटर में है, यहाँ पे भी सेंटर में। पर अगर टी सेक्शन को लेते हैं, ओके, टी सेक्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जियोमेट्रिक सेंटर में नहीं आता है। ओके, उसके लिए आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने की प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। यू नीड टू फाइंड वाई बार डिस्टेंस फर्स्ट। आपको वाई बार जो इस इक्वेशन की मदद से हम फाइंड करते थे, अगर कोई भी अनसिमेट्रिक सेक्शन आता है उसके लिए आपको सेम प्रोसीजर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते समय फॉलो करते थे वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे वाई बार फाइंड करेंगे तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो यहाँ पे लोकेटेड होगा एट अ डिस्टेंस, सॉरी नॉट हियर, एट अ डिस्टेंस वाई बार। सेंटर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो यहाँ पे लोकेटेड होगा। ओके, अभी ये ऊपर साइड भी हो सकता है या तो फिर नीचे की साइड भी हो सकता है, वॉट एवर वैल्यू यू गेट। सो नाउ इन दिस इक्वेशन z इज इक्वल टू I बाई सी। तो I तो मुझे मालूम है टी सेक्शन के लिए कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे C कौन सा वाला लूंगा, एज आई टोल्ड यू, न्यूट्रल एक्सिस का लोकेशन आपका जहां भी आता है वहां से मैक्सिमम डिस्टेंस जो अवेलेबल होगा मटेरियल का वहां तक का डिस्टेंस लेना होगा। ओके, सो इन दिस फिगर वी कैन सी कि नीचे वाला जो डिस्टेंस है ये वाला बड़ा है एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, सो हम नीचे वाला जो डिस्टेंस है वो ले सकते हैं। ओके, डोंट टेक इट ग्रांटेड, यहाँ पे डायमेंशंस अवेलेबल नहीं है। अगर डायमेंशन के साथ कैलकुलेट करते हो और आपका सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी न्यूट्रल एक्सिस जो है वो यहाँ पे आ जाता है तो आपको ऊपर वाला डिस्टेंस लेना होगा। ओके, मीन्स जो भी डिस्टेंस मैक्सिमम होगा न्यूट्रल एक्सिस से वो वाला डिस्टेंस आपको कंसिडर करना है। सो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड दैट्स इट फॉर थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे इस चैप्टर का थियोरेटिकल पोर्शन एंड होता है। So I would stop here and we'll continue in next lecture with examples. Okay, so यहाँ पे मैं stop करूँगा।